Hello, everyone. I welcome Mr. Asid Behra to this interview. He is currently serving as Officer Grade B at Insolvency and Bankruptcy Board of India. Thank you so much, sir, for taking out time from a busy schedule and agreeing to this interview. This interview will benefit our students at large. Sir, kindly give a brief introduction for the students, please. Firstly, thank you, Yuakshi, for inviting me. It's always good to, help people around, and thank you for giving me ample, notice so that I could take out time for this. So thank you very much. Yeah. Okay. So you want an introduction about what do you need Your exactly? professional journey, like how you have reached here and what exams you have appeared. Okay, sure. So yeah, my name is Asit Behra. So what I did was I did my schooling from Raipur, and then I joined Hidayatullah National Law University in 2009, and I graduated in 2014. I gave CLAT for that. After 2014, I practiced for some time. Then I started preparing for government service examinations, but mainly in the legal profile only. So I used to give a lot of IBPS specialist officer exams. I gave the IBPS SO exam, the IBPS RRB exam. Then for the general insurance companies, there are four general insurance companies. I gave exams for that as well. So 2016, I was selected for United India Insurance Company Administrative Officer Legal. I joined that, and my posting was in Bangalore. After that, I joined RRB Chhattisgarh Rajya Gramin Bank as manager. So that's a scale 2 law officer, and I was posted in Raipur, Chhattisgarh. I again started preparing because I wanted to give exams and do betterment. So I gave exams for SEBI and IRDA also. I had gone till interview, and in the meanwhile, this Insolvency and Hmm. Bankruptcy Board of India recruitment came out. That was also done by IBPS. So I cracked that in 2018, and it's been 6 years since I'm posted. So, that's a wonderful professional experience, basically, and you have been preparing for all of these exams. These are some of the most toughest exams in the country in the legal field because we have seen students, as mentors, we have seen students struggling to clear all these exams. So, sir, currently, total 125 vacancies have been notified as IBPS SO legal officer, which is one of the most highest vacancies in last few years in the country. Like this is the very first time 125 vacancies are there on board. So, what was your preparation strategy to crack this specific exam, and what sources you took, and what exactly what sources and what guidance you had at that particular moment when you were preparing for it? At that point in time, there was not much. So what I used to do was I used to join mock test series wherever possible. So there were a couple of websites जहाँ पे आप mock test series वगैरह Hmm. join कर सकते हैं. तो मुझे लगता है mock test सबको देना चाहिए. तो आप डेली का या कम से कम 2 दिन में एक मॉक टेस्ट आप दें तो इससे क्या यू कैन गॉज योर सेल्फ ऑफ वेयर यू स्टैंड इन द कॉम्पिटिशन. ऑल्सो मॉक टेस्ट से एक हेल्प ये होती है कि आपको आपके जो वीक एरियाज हैं वो पता चल जाते हैं. सो यू कैन Hmm. फोकस ऑन योर वीक एरियाज एंड देन यू कैन वर्क ऑन देम. Hmm. So my strategy was I would give a test in the morning. Hmm. एक एक 1.5 घंटे का मॉर्निंग में थोड़ा फ्री टाइम होता है. पीपल डोंट डिस्टर्ब यू एंड ऑल दैट. एंड व्हाइल आई वाज इन जॉब तो ड्यूरिंग Hmm. दोस फेजेस तो आई हैड लिमिटेड टाइम. I would give a mock test in the morning. In the evening, when I come back from the job, I would spend like 1 hour and see all those answers and questions and see where I had gone wrong and try not to do it. Apart from that, I used to do newspapers, read newspapers on a Hmm. daily basis. And कुछ छोटे छोटे एमसीक्यूज होते हैं वो जो 10 मिनट के 15 मिनट के एमसीक्यूज होते हैं. तो जब भी फ्री टाइम मिले यू कैन डू दैट ऑन योर Hmm. फोन एज वेल. Quant may I feel there are a lot of tips and tricks that one should use, and it comes with practice. So if you join a good, online coaching Hmm. or a test series, then वहाँ पे आपको quant के बहुत सारे अलग अलग Hmm. tips and tricks मिल जाते हैं. So these were some of the strategies that I used. सर, एक बेसिक क्वेश्चन बच्चों का जो हम लोग को रेगुलर बेसिस पे आता है वो ये है कि हमारा डेली स्केड्यूल क्या होना चाहिए. तो आप क्या सजेस्ट करते हो, सिंस आपने तो प्रिपरेशन तब की जब आप जॉब में भी थे, वो और डिफिकल्ट होता है प्रोफेशनल एंड पे मैनेज करना, और हमारे पास भी बहुत ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो प्रोफेशनली इस चीज़ को मैनेज कर रहे हैं, कुछ लिटिगेशन में है, कुछ किसी और फील्ड में है, और वो यहाँ पे स्विच होना चाहते हैं. तो उसके लिए आप डेली स्केड्यूल के लिए बच्चों को क्या सजेस्ट करोगे? आई थिंक आईबीपीएस एसओ की प्रिपरेशन की जा सकती है. ऐसा नहीं हम्म. है कि बहुत ज्यादा टफ है. यू शुड कीप एन आवर फॉर योर फिजिकल वर्कआउट्स एंड एवरीथिंग. पूरा आपको लगने की जरूरत नहीं है आई फील. बट हाँ, आपको कुछ टाइम निकालना पड़ेगा, एंड मेनली यू हैव टू बी डिसिप्लिन्ड
in Hmm. your goal. If you're taking it, it's basically daily tasks that you need to do. So अगर आप daily कुछ, I think 2 hours, 3 hours, 4 hours, Hmm. weekends में थोड़ा ज्यादा time अगर आप निकाल Hmm. पाते हो, obviously there are some sacrifices that have to be made, but 1.5 hours of some physical activity, some games, some running, jogging, gym can be done with this. And I think I would advise not to quit all these things completely, and focus on that as well. सर एक और क्वेश्चन जो बहुत कॉमन है वो ये है कि क्योंकि अभी भी जैसे प्री स्केड्यूल्ड है इन द मंथ ऑफ दिसंबर, मिड नवंबर सॉरी, एंड देन लेस देन अ मंथ है और मेन स्केड्यूल है उसके तुरंत बाद फॉर आईबीपीएस एसओ, तो इसको कैसे बैलेंस आउट करें प्री और मेंस के लिए? आपका क्या स्ट्रैटेजी होना चाहिए इस केस में कि दोनों साथ में प्रिपेयर करें या अलग अलग करें? व्हाट यू वुड सजेस्ट योर? डेली बेसिस पे तो प्रिपरेशंस करनी चाहिए, बट अगर आपको जैसे मॉक्स में अगर आपको लगता है कि आपका स्कोर्स ऐसे आ रहे हैं कि आपका प्रीलिम्स तो क्लियर हो ही जाएगा, हम्म then you do it on another level. But mocks में अगर if you have a fair enough idea कि I feel कि pre में भी कुछ हम्म risk हम्म है, हम्म हम्म then focus on pre first. That would be my strategy, so that you're not eliminated, because this comes once a year. तो हम्म। फिर आपका साल वेस्ट नहीं होगा कम से कम। तो सर ऐसा पॉसिबल है कि प्री क्लियर होने के बाद आराम से मेंस की तैयारी हो जाए? हो सकता है, बट आपको ज्यादा टाइम देना पड़ेगा, then you'll have to मतलब put on yourself on a higher gear, and then ज्यादा तैयारी, ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, and there is much more at stake. आंसर जैसे मेंस का सिलेबस है कुछ भी क्लियरली क्लासिफाइड नहीं है फ्रॉम द आईबीपीएस साइड की, उसमें क्लियरली लिखा है प्रोफेशनल नॉलेज ऑफ लॉ, तो उसको इंटरप्रेट करना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। तो आपका क्या स्ट्रैटेजी था मेंस को टैकल करने का? इसमें मैं ये देखता था कि बैंक में जो लीगल ऑफिसर्स हैं उनको बेसिकली किन लॉज की जरूरत पड़ती है, तो हम्म दीज शुड बी द फोकस एरियाज। लेकिन और कुछ कुछ लॉज बहुत छोटे होते हैं, जैसे आरटीआई है, राइट टू हम्म इंफॉर्मेशन एक्ट है, इट्स अ वेरी स्मॉल लॉ। हम्म उसमें कुछ क्वेश्चंस होते हैं जो बेसिकली रिपीट होते हैं, उसमें थोड़े हम्म कुछ पिटफॉल्स होते हैं, कुछ ट्रैप्स होते हैं, वो अवॉइड अगर आप कर सकते हैं, उसके आपने एमसीक्यूज कर लिए। फिर सारफेसी है, हम्म एबीसी है, कॉन्ट्रैक्ट के कुछ कुछ पोर्शंस है, नॉट द एंटायर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, बट देयर आर सर्टेन पोर्शंस ऑफ इट, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स हम्म। एक्ट है, तो आपको कुछ कुछ बेसिक चीजें हैं। कुछ क्वेश्चंस तो ऑब्वियसली यू कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड बिकॉज सिलेबस नहीं होगा, बट अगर आप की एरियाज में फोकस करके यू स्टार्ट प्रिपेयरिंग, देन आई थिंक थ्रेशोल्ड तो आपका 100% विल बी एबल टू मीट। सर एक और बेसिक क्वेश्चन जो आता है वो ये है कि क्या प्रीलिम्स में 3 सेक्शंस है हमारे पास, इंग्लिश, लॉजिक एंड जीके फॉर दैट मैटर, और हमारे पास लॉ प्री में नहीं आता, वो मेंस में आता है। तो क्या सेक्शनल कट ऑफ रहता है उसके अंदर? इज इट रिक्वायर्ड टू क्वालिफाई दैट ऑल्सो या फिर ओवरऑल कट ऑफ रिक्वायर्ड होता है? व्हाट मतलब व्हाट बेसिकली इज द क्राइटेरिया हियर? That depends on the exams actually, or from time to time. जैसे कुछ एग्जाम्स जो आईबीपीएस कराता है उसमें सेक्शनल कट ऑफ्स होते हैं। हम्म आईबीपीएस एसओ में आई एम नॉट श्योर दिस ईयर का क्या है, आई थिंक यू विल बी एबल टू गाइड इट मच बेटर कि इस साल का क्या क्राइटेरिया है। सर आपको क्या लगता है कि तीनों सेक्शंस पे इक्वल फोकस करना बहुत जरूरी है टू क्वालिफाई प्रीलिम्स? दैट डिपेंड्स ऑन वेयर यू आर। जैसे मुझे लगता था कि न्यूज़पेपर्स में डेली पढ़ता हूँ तो जीके लाइक हम्म फेयरली मेरा हो गया था, जनरल नॉलेज वाला जो सेक्शन है जो फेयरली हो जाता था। हम्म इंग्लिश भी फेयर इनफ हो जाता था, बट बिकॉज आई वाज इन लॉ स्कूल तो 5 साल क्वांट वगैरह का या रीजनिंग का हम्म तो उतना नहीं होता है, तो यू लूज टच विद इट, and then you had to touch base again and हम्म do those things again। और कुछ टाइप के क्वेश्चंस होते हैं जो इमीडिएटली आप एग्जाम में जाओगे and you have not practiced those type of questions and you'll not be able to do it। तो आई थिंक कुछ एरियाज में तो प्रैक्टिस ज्यादा जरूरी है। प्लस इट डिपेंड्स फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। अगर किसी पर्सन स्पेसिफिकली का कोई एरिया वीक है तो आप उन तीनों सेक्शंस में देखो कि आपके कौन से वीक एरियाज हैं। जीके में भी आपको सारी चीजें करने की जरूरत नहीं होती, देर आर हम्म लॉट ऑफ मंथली कैप्सूल्स अवेलेबल जो अलग अलग वेबसाइट्स में होते हैं जीके के। कुछ बैंकिंग रिलेटेड, इकोनॉमी रिलेटेड इंफॉर्मेशन होती है, कुछ टर्म्स होते हैं, तो आप जैसे अपने आप को फेमिलियराइज कर लेंगे तो आई थिंक दैट शुड बी डिसेंट इनफ। So एक और जनरल क्वेश्चन, हाउ इज लाइफ लाइक? यू करंटली आर वर्किंग एट इंसॉल्वेंसी बोर्ड ऑफ इंडिया, जो बहुत सारे एस्पिरेंट्स का ड्रीम होगा, क्योंकि ये बहुत बड़ी बात है कि आप वहां पे अभी पहुंच चुके हो एंड यू आर वर्किंग देयर। सो व्हाट आर बेसिक पर्क्स एंड व्हाट बेनिफिट्स डू यू फील दैट दिस पर्टिकुलर जॉब हैज टू ऑफर? Okay, so our salary and perks are on as par, or basically they are on par with that of a officer in SEBI. So हम्म we follow the same pay structure, हम्म barring some year. It's I would say in terms of government jobs, it's one of the best paying
government Hmm. jobs out there. So RBI, IRDA, Hmm. SEBI, IBPI, these are the government regulators. They pay the best. As a stepping stone, मैं aspirants को बोलूँगा कि आप as a legal officer banks में join करो, but Hmm. do try to attempt to get into a regulator. Hmm. You wanna climb that ladder when you. Hmm. Life is pretty comfortable. I would say कि it's a well-paying job, Hmm. and with the government job, it comes with a lot of respect, and Right. there's obviously the job security, Job security. but there are a lot of responsibilities as well. So there are days when you're working really hard and you're working till late night. You would be called on weekends, but government job has its own perks. So you Hmm. get uh, like अगर आप बैंक ज्वाइन करते हैं फॉर एग्जांपल, जैसे मैं एसओ के लिए भी बता देता हूँ जो Hmm. Hmm. एस्पिरेंट्स Hmm. कि आपको सब्सिडाइज्ड सिंपल इंटरेस्ट रेट में लोन्स मिलता है फॉर योर Hmm. होम लोन, फॉर कार लोन, यू गेट पेट्रोल एडवांसेस, फर्नीचर फिक्सचर एडवांसेस, इलेक्ट्रॉनिक एडवांसेस, लैपटॉप, मोबाइल, आपका एचआरए और डीए बीच बीच में बढ़ता रहता है. सो ऑल दीज पर्क्स आर एसोसिएटेड with these jobs. So it's a good salary. सो बेसिकली विल यू सजेस्ट द एक और चीज तो ये मैंने देखी है कि बहुत सारे जैसे इंसॉल्वेंसी में यू आर वर्किंग राइट नाउ, तो वो कहीं ना कहीं आपसे प्रोफेशनल एक्सपीरियंस भी डिमांड किया होगा जॉब ने वाइल प्रिपेयरिंग, आई बिलीव सो, आई एम नॉट वेरी श्योर, बट यस आप बहुत सारे एग्जाम्स कुछ 3 इयर्स 4 इयर्स का प्रोफेशनल एक्सपीरियंस भी डिमांड करते हैं। तो यदि कोई है जो क्योंकि आईबीपीएस एसओ फ्रेशर्स को अलाउ करता है, तो कहीं ना कहीं यदि कोई फ्रेशर स्टूडेंट ग्रेजुएट होने के बाद तुरंत आईबीपीएस एसओ क्रैक करता है और उसके बाद वो 3 या 4 साल वहां वर्क कर रहा है, तो क्या ये एक्सपीरियंस बाकी एग्जाम्स में उसको हेल्प करेगा क्वालिफाइंग क्राइटेरिया मीट करने के लिए? हाँ, ये डेफिनेटली हेल्प करेगा. जैसे फाइनेंशियल सेक्टर में लॉट ऑफ थिंग्स आर इंटरकनेक्टेड. सो आई हम्म। वर्क विद एन इंश्योरेंस कंपनी एंड देन आई वर्क विद अ बैंक. हम्म। So it definitely helped in the interview. So I Alright. would say in my interview panel there was one person from Indian Legal Service, one person हम्म। from IRDA, and one हम्म। person, very senior person from a bank. So they found that this person could be an asset because इसने financial अलग-अलग financial sector वाले areas में काम हम्म। किया होता है, तो the organization can use it. Also अगर आप IBPS SO में भी जाते हो तो आप स्केल 1 में बेसिकली एंट्री ले रहे हो, बट हम्म। बीच बीच में ये बैंक्स में लीगल ऑफिसर्स की स्केल 2, स्केल 3, स्केल 4 की वैकेंसीज आती हैं. सो इफ यू हैव दोज रेलेवेंट नंबर ऑफ इयर्स हम्म। एक्सपीरियंस इन द पब्लिक सेक्टर बैंक्स, so then it becomes easy to switch banks and then gain promotion. So there are a lot of friends of mine, colleagues and batchmates I've seen doing that, and they are in scale 3, scale 4 in banks हम्म। currently. सो बेसिकली वी कुड सम अप इन दिस वे कि आईबीपीएस एसओ में भी यदि आप कंटिन्यू कर रहे हो तो यू हैव अ गुड लाइफ अहेड, एंड Yeah. उसके बाद यू कैन गो एंड स्विच इनटू रेगुलेटरी बॉडीज आल्सो, जिसके तो अपने पर्क्स हैं ही, जैसे कि आपका एक्सपीरियंस भी रहा है। तो बेसिकली फॉर प्रिपेयर आपने इतने सारे एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर किया, ग्रेजुएशन के बाद आपको काफी टाइम भी लगा होगा, आप बहुत ज्यादा मेंटल स्ट्रगल से भी गुजरे होगे, तो उस मेंटल वेलबींग के लिए आप क्या सजेस्ट करते हो एस्पिरेंट्स, क्योंकि बहुत पेशेंस लगता है जितना मुझे समझ में आता है। So what do you suggest कि process में what they should consider? I think there's a lot of social media अभी, तो अगर if you look into that, if you spend too much time that, तो फिर आपकी expectations imbalance होंगी वहाँ पे. तो I think 1 घंटे का physical some activity, हम्म। it's good to keep you sane at least. And then बीच बीच में you hang out with your friends, spend time with your family, but if you are focused, then I think it will not be problem. And sometimes you'll miss exams, happens with everyone. Interview हम्म। जाएंगे या prelims तक जाएंगे या mains तक जाएंगे, and you'll not clear, but these are also learnings and stepping stones. क्योंकि ये एग्जाम्स में आपको पता चलता है कि आपने क्या खराब किया था. वहाँ पे इंटरव्यू में भी जाते हैं तो आपको एक फीडबैक तो मिलता है, जीडी में जाते हैं, प्री में जाते हैं, मेंस, एक फीडबैक आपको, इंटरनल फीडबैक आप खुद भी हम्म। ऐसे कर पाते हैं कि क्या मैंने गलत किया. So it's important not to do and repeat those mistakes again and learn from them, and then I think then it should be good. सर प्री और मेंस के लिए तो आई थिंक हमारे पास एडिक्वेट मटेरियल होता है व्हेन वी आर प्रिपेयरिंग फॉर इट, एक आइडिया हमको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से भी मिल जाता है, साथ में अब मॉक्स भी बहुत सारे अवेलेबल हैं। सर इंटरव्यू के लिए कोई स्पेसिफिक गाइड नहीं होता मुझे ऐसा लगता है, तो आपने क्या टेक्निक्स अडॉप्ट की थी इंटरव्यूज देते वक्त या इंटरव्यू में अपियर करते वक्त? इंटरव्यू के लिए बेसिकली देखो, इंटरव्यू में तो देन व्हेन यू आर स्टेपिंग इनटू इंटरव्यू, दे आर टेकिंग यू एज अ स्पेशलिस्ट लीगल ऑफिसर हम्म। बेसिकली. देन लॉ पॉइंट्स शुड बी एट योर फिंगर टिप्स, एटलीस्ट द मोस्ट बेसिक वंस.
तो then what you do is you read up on interview questions. There is some material available on internet, जो लोगों ने अपने इंटरव्यू दिए हैं तो उनके एक्सपीरियंसेस वगैरह हैं, आप उसमें देखो कि किस तरह के क्वेश्चंस हैं, और you work on your body language, and then you can ask your family or friends की कुछ basic questions आपको, and ask take help from your friends who are in the same background, at least they can do an interview with you, and then they can give you feedback, and you have to take that feedback constructively, मतलब, at that point in time. I think that should help you सर out. क्या सीवी एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है इंटरव्यू के लिए? CV, you can make it up, but at this point in time, it doesn't play that big a role right now. I think in coming years, उसका role थोड़ा बढ़ेगा कि which background you're coming from and all that. But they do take a look at your CV. Uh, but I think the extracurricular activities right now are not taken into consideration. But the college, if you have an LLM or if your grades are really nice, then that is obviously taken into consideration. सो जो LLM का ईयर होता है, क्या वो एक्सपीरियंस की तरह काउंट होता है या फिर दैट्स अ काइंड ऑफ एजुकेशनल क्वालिफिकेशन दैट इज काउंटेड? एजुकेशनल क्वालिफिकेशन मोस्टली तो एक्सपीरियंस में वो काउंट नहीं होगा, नहीं but तो that's an added advantage that some of the organizations take actually. सर वन लास्ट क्वेश्चन, इंटर्नशिप्स बच्चों को कैसी करनी चाहिए इफ दे आर एमिंग टू गेट इनटू अ गवर्नमेंट जॉब इन बैंकिंग सेक्टर और इनटू रेगुलेटरी बॉडीज सेटअप? Regulatory bodies setup में तो then you can definitely intern with the regulators. We have an internship policy. The Competition Commission of India, IRDA, RBI, and SEBI, they all have an internship policy. SEBI, I believe, has recently come up with a young professionals programs. People can join that and do it. I think अभी CAs के लिए खुला है, lawyers के लिए in some time it will open up. Other places there are good internship policies. PSU banks में अभी तक internship policy is not very clear, but regulators में the internship policy is really clear. Also law firms में banking and finance में बहुत सारा काम होता है. Civil court and criminal courts में there are a lot of lawyers who practice on the civil side, and बैंक empaneled lawyers होते हैं जो SARFAESI या DRT में काम करते हैं. उन इंटर्नशिप्स पे आप देख सकते हो, तो you'll get some practical knowledge and insights कि actually वहाँ पे कैसा काम होता है. Thank you so much, Asit sir, for your time and this guidance. I am definitely very sure कि सारे aspirants को बहुत help होगी आपके इस professional expertise से जो आपने आज share किया है. Thank you once again from the entire team of Legal Edge After College, and we are glad that you took out some time and guided the aspirants. Problem at all, Actually, thank you for inviting me again. Thank you. Thank you, sir.